Hello friends, like, subscribe and press bell notification. Today we are starting with line projections. In this basically 6 points are there: line parallel to both plane, line parallel to one and inclined to other, line parallel to one plane and perpendicular to other, line inclined to both the planes. Some special cases are there and traces of lines we can find. In this lecture, we will cover these 3 points: line parallel to both planes, HP and VP, line parallel to one plane and inclined to other, line parallel to one and perpendicular to other. In last lectures, we discussed about projection of point. In that, we discussed almost all the cases, octants, quadrants. For that, you can visit lecture of points shown. In line projection, first case, when the line is parallel to both principal planes, that is HP and VP. We are taking this as view. This is as the vertical plane and this is as horizontal plane. When you are visualizing it from front, it will not shown as a complete plane, it will be shown as a line only. Now it is as a plane. Now, when line is parallel to both the plane, means distance from both the plane is same for point A and B. If a line is AB, the both end are having same distances. Now in the front view it is placed like this, or a straight line, and in the top view it will be a straight line on the horizontal plane like this. Okay, जब हम इसको शीट पे बनाएंगे तो शीट पे बनाने के लिए हम लोगों को पॉइंट प्रोजेक्शन आना चाहिए, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है. हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं कि पॉइंट ए इज अबव HP at a distance of 30 mm and in front of VP at a distance of 60 mm. A dash and A. For this point projection, you can visit lecture number 1 for projection of points. Link is in the description. If the length of the line is 10 mm, okay, and it is parallel. Now we made a parallel line. The coordinate for B will remain same. Likewise, we will join it. In the case of line, this is the actual view is darker one. This is the actual view, it is also darker one. This is the line in first quadrant. First quadrant में front view line से ऊपर और top view line से नीचे बनेगा, जैसा कि हम लोगों ने point projection में बताया था. इसी तरीके से हम सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉइंट प्रोजेक्शन ऊपर होंगे, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. हम वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जो HP VP से हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, सिर्फ आपको क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके से बनेगी. सेकेंड क्वाड्रेंट में दिस इज HP एंड दिस इज VP. तो HP क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऊपर रोटेट होगा, तो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप होंगे. ये ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है, ये हम लोगों ने पॉइंट प्रोजेक्शन में डिस्कस डिटेल में किया. तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा व्यू बनेगा A डैश B डैश ऊपर, AB हियर. यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस करेंगे, जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग यहाँ डायमेंशन लिखेंगे.
अगर हम लोगों ने कंप्लीट डायमेंशन लिखनी है तो हम लोग कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखेंगे, अदरवाइज हम -10 जो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट है ओके, बी के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, लेंथ ऑफ द लाइन इज 60। ओके, सिमिलरली अगर हमारे को थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना है, थर्ड क्वाड्रेंट इसका जस्ट 180 डिग्री रोटेट होगा, इसका जस्ट 180 डिग्री रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू दोनों के नीचे आएंगे और टॉप व्यू ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही फर्क है। सेम केस सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट 180 डिग्री रिवर्स होगा, जैसा हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉइंट प्रोजेक्शन में किया था। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी जगह पे डाउट होता है, यू कैन टेक अ पॉज एंड check again the video. Okay, now second case is line inclined to one and parallel to other, means पहला केस ले रहे हैं line inclined to HP and parallel to VP। अगर लाइन inclined है HP से horizontal plane से, ये रहा horizontal plane, लाइन है inclined to HP एंड पैरेलल टू VP। VP से पैरेलल का मतलब है कि वो डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्टेंस 0 भी हो सकता है। हम अभी 0 डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। पॉइंट सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइन पूरी कंप्लीट हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब जब हम इसको बनाएंगे, इंक्लाइंड वाली लाइन हमारी पहले बनेगी क्योंकि उसमें एक्चुअल लेंथ आएगी। देखो एक्चुअल लेंथ उसी में दिख रही है। जब वो ऊपर से देखेंगे यहाँ से, तो इसकी शेडो थोड़ी सी छोटी बनेगी, है ना, क्योंकि जब सूरज हमारा ऊपर होगा, यहाँ पे लाइट सोर्स हमारा यहाँ होगा, तो एक इमेज पॉइंट यहाँ से बनेगी, एक इमेज पॉइंट यहाँ से बनेगी। तो ये लेंथ बड़ी होगी और यहाँ से जब हम इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो लेंथ हमारी छोटी रहेगी, इमेज इसकी छोटी बनेगी। तो वो हम डिफाइन करेंगे जब हम लाइन पहले कंप्लीट बना चुके होंगे। ठीक है, अभी बना के देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन मान रहे हैं लाइन इज इंक्लाइंड टू HP एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। कोऑर्डिनेट VP से 0 A का और HP से जस्ट 10, ये A के कोऑर्डिनेट है। लेंथ ऑफ लाइन इज 60 mm, ये हमने मान के चले। अब अगर 10 mm अबव है HP से तो ये 10 mm हो गया, VP पे है तो ये इसका टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। नाउ एक छोटी सी लाइन लगाएंगे जिससे हम लोग बेस लेके एंगल 20 डिग्री ले सकते हो। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, हमने ये सारा काम लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पे कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ड्राफ्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोगों ने ये काम ड्राफ्टर की हेल्प से करना है। ठीक है, ये हमने 20 डिग्री का एंगल मेंशन किया, 60 mm ये होगी इसकी लेंथ 60 mm। ये पॉइंट आ गया हमारा B डैश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में व्यूज बनेंगे, ये हमारा B। ठीक है, इसी को अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, हम 20 डिग्री एंगल ही ले रहे हैं HP से, मैंने ऊपर लिखा हुआ है 10 x का माइनस के साथ एंड y पॉजिटिव के साथ, लेंथ वही 60 mm। तो इस केस में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
इसको 20 कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न कम होगी। इस केस में व्हेन द लाइन इज बिहाइंड वीपी 10 mm, तो टॉप व्यू हमारा 10 mm पे बनेगा, एंड अबव एचपी 20 mm, तो ये हमारा डिस्टेंस 20 mm। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक एंगल बना के चलेंगे, जो एंगल हमारा 20 डिग्री बन रहा है। ट्वेंटी डिग्री के लिए 60 mm, ये 20 डिग्री हमने मेज़र कर लिया। ये बी डैश, ये लाइन पैरेलल है वीपी के, तो ये बी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट इसका जस्ट रिवर्स, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका जस्ट रिवर्स 180 डिग्री। ठीक है, जब वीपी से इंक्लाइंड होगी तो टॉप व्यू हमारे को कुछ इंक्लाइंड दिखेगा, जैसे ए डैश। ओके, नाउ एंगल इज इन टॉप व्यू 20 डिग्री, आप 30 डिग्री ले सकते हो, और विद द लेंथ 60 mm। बी डैश बी, टॉप व्यू में एंगल हमारा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री करने से यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 रह गया है। ठीक है, इससे पहले वाली स्लाइड में जब एंगल 20 डिग्री था तो ये डिस्टेंस हमारा 57 था। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू जो है व्यू की छोटी होती जाएगी। इसको रब करना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करें तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही डाउनवर्ड आएंगे। ए डैश, जो एंगल है वो हम अब 45 डिग्री कर रहे हैं। जब 45 डिग्री एंगल करेंगे हम लोग तो जो डिस्टेंस है, जो व्यू का की लेंथ है वो और कम हो जाएगी। ठीक है, व्यू की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 4 के करीब रह जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। देखिए ये जो लेंथ है ये 60 ही है, ये 20, ये 20। ठीक है, कोऑर्डिनेट 20,40। ठीक है, ये बी डैश। लाइकवाइज जब हम ये एंगल बढ़ा रहे हैं, अब हम और थोड़ा सा एंगल इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो वर्टिकल प्लेन में अगर हमने इसको 90 डिग्री कर दिया, अगर हमने इसको वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री कर दिया, वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री अगर हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से डॉट दिखेगी हमारे को फ्रंट व्यू में।
और टॉप व्यू में हमारे को एक कंप्लीट लाइन दिखेगी जिसकी डायमेंशन 60 mm है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इसी को सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन कंप्लीट हमारी ए बी और ए डैश बी डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमारा दोनों पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों के दोनों हमारे कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, इसको 180 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अगर HP से परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है, HP के परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है, तो VP पे कंप्लीट लाइन बनेगी और HP पे डॉट पॉइंट बनेगा। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे हैं 10 20 10 mm in front of VP and 20 mm above HP। ये हमने डिफाइन कर दिया A डैश A। ओके, अब जो लेंथ है वो लेंथ हम ऊपर मेज़र करेंगे, B डैश, B हमारा यहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब दोनों के दोनों पॉइंट हमारे ऊपर होंगे कुछ इस तरीके से, A और A डैश, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ लाइन मेज़र करेंगे B डैश, मगर ये व्यू टॉप यहीं रहेगा एज। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट्स में बना सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप और you can raise the queries in comments. Please do like, subscribe and share the videos so that you will get notification earlier. You can also visit Instagram. Thanks for liking, subscribing and pressing on the bell notification. You can also visit these other lectures. The link of these lectures are in description. Thank you and take care.